Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is a SST Edupedia and I am Assistant Professor Namrata Singh. Today we are going to learn the new theory, that is a psychoanalytic theory. In our day-to-day life, this psychoanalytic theory plays a very important role. So this psychoanalytic theory is propounded by the Sigmund Freud. So Sigmund Freud's propounded the psychoanalytic theory of personality, which is argued that human behavior was the result of the interaction of the three components parts of the minds: the id, ego and superego. In short, this psychoanalytic theory is based on these three components, that is the id, ego and superego. So basic tenets of the Freud psychoanalytic theory is, which is divided into the three level of the consciousness. First one is the conscious. So conscious means what we are thinking about or experiencing at any given moment. Here it is purely related with the individual's thinking कि वो अगर कोई सिचुएशंस हैपन हो रही है, वो सिचुएशन में वो उसके बारे में क्या सोच रहा है या उसके लिए वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज द कॉन्शियस. मतलब वो देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, मतलब उसके लिए वो क्या है, अलर्ट है. प्री कॉन्शियस. इन द प्री कॉन्शियस व्हाट वी कैन रेडिली कॉल टू कॉन्शियसनेस, दैट इज द मेमोरीज एंड नॉलेज. मीन्स राइट नाउ वो सिचुएशंस या इवेंट हैपन नहीं हो रही है, बट उसकी कुछ मेमोरीज हैं, उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज है जिससे हम लोग रिकॉल करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. दैट इज नॉट इज द प्री कॉन्शियस. एंड अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस मीन्स the thoughts, desires and impulses of which we are not aware. This is the largest level of consciousness. Means what? मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी इच्छा क्या है, इसके बारे में कुछ भी मुझे पता नहीं है. दैट इज नोन एज द अनकॉन्शियस. मतलब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है. आई एम अ लिस्ट बॉदर्ड फॉर ऑल दोस थिंग. दैट इज नोन एज द अनकॉन्शियस. सो psychoanalytic theories involve three levels of the consciousness, that is the conscious, pre-conscious and unconscious. So structure of the personality depends on these three criteria: id, ego, superego. In the id, it comes in instinctness. In the ego, that is the reality, and the superego is the morality. So here is the three phases of the person. In the id, the behavior is different. In the ego, the behavior is different, and in the superego, the thinking, their personality is totally different. So id represents predetermined set of psychological needs, drives and instincts. For example, seek pleasure, avoid pain. मुझे कुछ पेन हो रहा है, मुझे ध्यान ही नहीं रहना है कि मुझे पेन हो रहा है. दैट इज द आईडी, जहां पे हम लोग पहले से डिटरमाइन करते हैं हमारी साइकोलॉजी को, हमारे नीड्स को, हमारे ड्राइव्स को और हमारे इंसेंटिव्स को. सेकेंड इज कम सुपर ईगो. इन द सुपर ईगो इज कम, दैट इज द internationalization of the moral principles or rules of the society. Means what? We have to follow all the moral principle, और हमें वो rules फ्रेम करने हैं या फॉलो करने हैं जो सोसाइटी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी. दैट इज द सुपर ईगो. And the next one is come in this, that is the ego. So what is the ego? That is the awareness of the oneself and ability to interact with the world. So in the ego, it is a very must to maintain a balance between the id and super ego. So यहाँ पे क्या करना है, हमें अवेयर होना है. अवेयरनेस इज वेरी मस्ट अबाउट द वन सेल्फ. खुद के बारे में पता होना चाहिए. जब हमें खुद के बारे में पता होगा, देन ओनली वी कैन इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड. सो एज पर द फ्रूट्स psychosexual stages, it is divided into the 5 parts.
The first one is come, that is the oral stage. Now what is the oral stage? In which it is a start from birth to 1 year, means it is related to the kids. जहां पे एक छोटा बेबी क्या करता है, इरोगनियस जोन माउथ, मतलब वो जो भी खाएगा पिएगा वो खाएगा पिएगा विद द हेल्प ऑफ द माउथ, मतलब उसे वाटर पीना है, ही इज गोइंग टू यूज दैट बॉटल और थ्रू द स्पून उसे कुछ खाना है, कुछ भी फीडिंग करना है, वहां पे उसकी मॉम क्या यूज करेगी, स्पून यूज करेगी. दैट इज नोन एज द ओरल स्टेज. After that he comes in the anal stage. So anal stage is start from the 1 to 3 years. Again here is the erogenous zone is what, bowel and bladder control. In short यहाँ पे जो बेबी होता है उसे हम लोग स्मॉल ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू सिट फॉर द पोटी, या फिर उसे अगर मिल्क पीना है तो इन स्पाइट ऑफ द बॉटल वो किस तरीके से ग्लास से पीना स्टार्ट करे, ठीक है. इन स्पाइट ऑफ दैट बॉटल वो स्पून से कैसे पीना स्टार्ट करेगा, स्पून से उसे खाने कैसे आना चाहिए, दैट इज नोन एज द एनल स्टेज. आफ्टर दिस कम नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द phallic stage. So phallic stage is start from the 3 years to 6 year. Here the erogenous zone is, that is the genitals. जनरली यहाँ पे क्या होता है, जो भी वो चिल्ड्रन होगा वो थोड़ा सा सोशल होगा, ठीक है. वो स्कूल में अपने जेंडर को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. लाइक अगर वो बॉय है तो बॉय के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करेगा और गर्ल है तो गर्ल के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करेगी. नेक्स्ट इज कम, दैट इज द लेटेंट स्टेज. सो लेटेंट स्टेज इज स्टार्ट फ्रॉम द 6 years टू प्यूबर्टी, लिबिडो इनएक्टिव. यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो ज्यादा करके सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, मीन्स अकेले प्लेग्राउंड में खेलने जाना, लोगों से मिलना, अपने एज के बच्चों से मिलना, उनके साथ खेलना, स्कूल की मेमोरी शेयर करना, स्कूल्स के शेड्यूल्स को क्या करना, शेयर करना. इट कम्स अंडर द लेटेंट स्टेज. एंड द लास्ट स्टेज इज कम, दैट इज अ जेनिटल स्टेज. सो हियर प्यूबर्टी टू डेथ. इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी यंगस्टर्स होंगे उसमें क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, और जनरली वो ऑलवेज अपोजिट सेक्स के साथ, अपोजिट जेंडर्स के साथ वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं और वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं. सो इन द ओरल स्टेज वी हैव टू लर्न द एज रेंज इज फ्रॉम 0 to 1 year old. So here what happen at this stage? In short, children derive pleasure from oral activities. Means slowly वो oral activities start करता है generally from after the 3 months, including sucking and tasting. धीरे धीरे वो क्या करता है, बॉटल सक करना स्टार्ट करता है, फूड्स को टेस्ट करना स्टार्ट करता है. अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ सॉल्टी खा लिया है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, सो ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज बिहेवियर कि उससे वो पसंद नहीं आ रहा है. सेम टाइम पे आप उसे कुछ स्वीट्स दे रहे हैं, उससे वो अच्छा लग रहा है, तो वो उसकी क्या करेगा, अगेन एंड अगेन डिमांड करेगा. सो दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ. यहाँ पे क्या होता है, बच्चा हर एक चीज को क्या करेगा, अपने माउथ में लेने की कोशिश करेगा, हर एक चीज को माउथ में लेगा, उसे खाना पसंद करेगा. सेकेंड इज कम अगेन एनल स्टेज. इन द एनल स्टेज द एज रेंज इज फ्रॉम 2 to 3 years old. जनरली यहाँ पे पेरेंट्स चिल्ड्रंस को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग देते हैं. लाइक चिल्ड्रन बिगिन पोटी ट्रेनिंग, कैसे उससे पोटी के लिए बैठना है, फिर स्लोली उससे बात करना स्टार्ट करेंगे, उससे वर्ड्स सिखाना स्टार्ट करेंगे, लाइक एज अ मॉम, डैड, भाई, दीदी, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, दादी, बाबा, इस तरीके के वर्ड्स उसे क्या करते हैं, सिखाते हैं. बाहर के जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है उससे अवेयर कराएंगे कि दैट इज अ कैट, कैट कैसे बोलेगी, म्याओ. वो क्या है, डॉगी, डॉगी कैसे बोलता है, उसकी वॉइस निकालकर क्या करेंगे, बच्चे को सिखाना स्टार्ट करते हैं. तो इससे क्या होगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, कहीं ना कहीं उसकी साइको एनालिटिक जो थिंग्स है वो क्या होगी, इंप्रूव होना स्टार्ट होगी. नेक्स्ट स्टेज इज कम अगेन, दैट इज अ फेलिक स्टेज.
which start from the 3 to 6 year olds. यहाँ पे जो boys होते हैं generally they becomes the more attached with the mother and while girls are more attached to their father. Means schools में कुछ हो रहा है, उस son को कुछ भी एक्सप्रेस करना है, शेयर करना है, तो अपनी मदर से आके क्या करेगा, शेयर करेगा. सेम टाइम पे डॉटर है, उसे कुछ चाहिए, उसे पिकनिक पे जाना है, उसे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, इंस्पाइट ऑफ द मदर वो फादर के साथ क्या करती है, ज्यादा शेयर करती है. तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड, एक रिलेशनशिप क्या होती है, मैच्योर होती है, क्रिएट होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है. Then next is come in this, that is the latency stage. Here generally it is start from the 6-year-old to puberty. Generally यहाँ पे जो childrens होते हैं वो spend करते हैं more time with the friends and interact mostly with the same sex peers. Like in the school boy है तो वो boy के साथ क्या करेगा, ज्यादा time spend करेगा, उसके साथ होमवर्क कंप्लीट करेगा, उसके साथ गेम खेलना पसंद करेगा, उसके साथ ही ग्राउंड में जाना पसंद करेगा. सेम इट हैपन विद द गर्ल्स ऑल्सो. गर्ल्स की यहाँ पे क्या होगी, एक फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, जो भी चीजें शेयर करनी है वो गर्ल्स के साथ में शेयर करेंगे. मतलब यहाँ पे सेम सेक्स पीयर्स के साथ क्या होता है, इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ता है और वहां पे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं. And the last stage is come is here, that is the genital stage, means beyond puberty. यहाँ पे क्या हो जाता है, children mature हो जाता है and here individuals are attracted to opposite sex pairs. Like latency में क्या था, same sex pairs के साथ क्या हो रहा है, वो attract हो रहा है, but यहाँ पे opposite होगा, girl and boy. Means from the standard of the 10th we can take, वहां से क्या होगा, गर्ल एंड बॉय में फ्रेंडशिप होगी. दे आर गोइंग टू शेयर देयर मेमोरीज, आइडियाज, ओपिनियंस विथ ईच अदर. सो लाइक दिस वे फ्रूट्स proponded his theory and explain कि how the with the help of the psychosexual stages a person is developed and his behavior is developed. Thank you.